I can see that Nivedita has joined. Hello. Yeah. Good evening, sir. Am I visible? Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome all. And on behalf of all the participants, welcome Nivedita. Thank you, sir. Am I visible? No, you're not visible. You're not visible. Your camera is off. I just. Nivedita's camera is off. Okay. I'd request everybody to turn off their mics and cameras. There seems to be some problem with the camera of Nivedita. So जब तक वो आती हैं तब तक हम लोग थोड़ा पेशेंस रखें. यहाँ कोई धनबाद से हैं क्या अभी? Is anyone from Dhanbad? No idea, sir. No idea. Okay.
एक्चुअली हम लोग चाह तो रहे हैं कि इसको बहुत ही रेगुलर रखें, परंतु कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम तो हो जाता है। तो रेगुलर तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट अ वेरी रेगुलर फीचर। हर वीक एक प्रोग्राम किसी न किसी टॉपिक पे। Nivedita, now you are visible. Welcome back. Actually, Nivedita, can you speak? Yeah. Yes, good evening, sir. There was some issue with my laptop, so I've connected it with my phone now. Okay, good enough. Yeah. See. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Nivedita, she has done her LLB from Bangalore University, BA LLB, 5 years course. And she also has done LLM from National Law University, Raipur. Thereafter, she started working with law firms in Delhi and Calcutta. Calcutta, no? Yes, sir. Yeah. And she did work with some very famous companies also. Some very famous companies were her clients. She has done a lot of research in various subjects, particularly related to women's right to property, etc. She is interested in human rights as well. And she has been a visiting faculty in Ohio University and editor of the law magazine that is published from the Ohio University, the University Law College, Ohio University. She's in fact a very wonderful person as well. जो जब हम लोग झारखंड स्टेट बार काउंसिल की तरफ से कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज करा रहे थे लॉयर्स एकेडमी की तरफ से, she used to travel all the way from Hazaribagh to take classes without any charge. We do owe her something. So I really appreciate your effort made, and I also appreciate the effort you are making today. And I thank you on behalf of all the participants over here that you have graciously accepted, in fact, to present this talk on harassment and blackmail of girls. So now over to you, Nivedita. Yeah, good evening all. Namaskar to all the participants we have today in this meeting. Lecture will be more or less in English and Hindi, so I hope that's not an issue. Sir has given a very big and nice introduction. I felt like some great personality, but I'm not actually. I'm just trying to make some difference. And I'm sure Rajesh sir has taken the initiative, and definitely he'll go forward. And it's a very good step that he has taken, starting with these classes, and he tries his level best. And just seeing his enthusiasm and his dedication towards, enlightening students about the issues that is happening all over. People like me will definitely be drawn by his energy. So thank you, sir, for inviting me. And today, in this particular class, that I will not say class, this particular talk is on a very interesting topic, that is blackmail and sexual harassment. If we are talking about blackmail, and if we are talking about sexual harassment for girls and all, इसके पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी जरूरत क्या है. Why do we need to talk about things like that? Why do we need to talk about harassment of girls? Why we need to talk about sexual harassment of girls in general? And then we also need to talk as in why are we talking or focusing so much on blackmailing and sexual harassment of girls
at different stages in life and at different platforms that are being provided to them. Now, if I'm talking about harassment of women or harassment of girls, the topic that is, harassment can be in any form. Harassment can be emotional harassment, harassment can be physical harassment, harassment can also be sexual harassment. Now, अब एक लड़की harass हो रही है कि नहीं, that is also one big thing. Girls, at lot many times, they are not very sure whether they are being emotionally abused, and most of the time the girls need not know or may not know that they are being sexually exploited on some emotional grounds and things like that. So उन्हें पहले तो हमें ये समझना होगा कि they should understand what is the exact meaning of harassment. harassment होता क्या है, हमारे laws उसके बारे में क्या कहते हैं, हमारे IPCs हैं, हमारे special laws हैं जो specially women के लिए है, हम टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी वो हरासमेंट में एड ऑन कर रही है, या टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ मोर सिक्योर फॉर वुमेन. Can we talk about blackmailing online? Can we talk about blackmailing through phone calls? Can we talk about blackmailings directly using various sources? We'll be discussing so many things. We'll be talking about various offenses women has to go through or suffers. There are various offenses against that is happening against the women. Their rights are being violated, and how those rights or those violations or those offenses are being addressed by various laws that we have at different stages of a woman's life. Now, just to start with a small background, if you see a woman, a girl child, when she's born, even before her birth, we have laws to make sure that she's coming to this world. We have laws to make sure of just to avoid feticide, female feticide. You know, you find out the gender if it's a female, and then you try killing that gender. So we have laws to make sure the mother or the family of the child, unborn child, doesn't know about the gender of the child. Now, that even there are laws to make sure that even before your birth is secured. So we are talking about a stage, we're talking about a time period where you do not know you exist. We as a women, we do not know we exist, but there are laws to make sure that we come to this world. We are not discriminated on some ground or the other. Now, when a girl child is born, there are certain regions in India who celebrate the birth of girl child, and there are certain families or the family background who do not celebrate to that grand extent the birth of a girl child for whatever background reason it can be. We all belong to a patriarchal society where the society is being governed by the males of the family. You know, the karta of the family are usually the male. It can दादाजी रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे, पिताजी का बेटा रहेगा, फिर उसका बेटा रहेगा, फिर बेटा का बेटा रहेगा, and it goes on. Is the male lineage we are talking about. So if we are talking about male lineage, we are actually talking about how society is governed by a patriarchal mindset, you know, where the mindset is in such an extent that whatever things that we are going through or whatever is happening in the society, it's happening, there is a particular way of working, you know, male lineage. Karta can be a male. Hindu female did not have a right over the property for a very, very long time. It was added on very recently when they could become the equal shareholder in the property. And the same thing applies even they जाती है ना, उनको किचन के लिए ट्रेन किया जाता है, उनके खिलौने गुड्डा गुड़िया होते हैं, उनको परवरिश घर के काम काज में ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है ना, बेटा पानी लेते आओ, बेटा चाय बना दो, those kind of things. Now if you're talking about upbringing a child in such a way, अगर हम ऐसी परवरिश की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने की, परवरिश वहां से शुरू होती है. हम बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं वो बहुत अहम भूमिका रखती है. Now, emotional
harassment can start right from the home and it can extend to even to her patriarchal, मतलब शादी होने के बाद जो matrimonial home होती है वहां तक भी वो extend होता है. Now for example, अगर मान लीजिए, yes मैम, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे एक चीज? जी मैम, आपने कहा कि मतलब वुमेन्स को पहले से संस्कार ऐसे मिलते हैं कि वो मतलब कि लड़की रहे, एक गुड़िया से खेले, ये खेले. मेरा कहना है कि अगर आप दोनों मतलब बॉयज एंड गर्ल्स में कोई अंतर ना रखें, मतलब मेरा तो बोलना आप समझ पाए या अच्छे से, कि दोनों अगर दोनों का अच्छे संस्कार दिया जाए कि आप वुमेन्स के ऊपर क्या सोचें. मतलब हमारे पेरेंट्स समझाया हमें कि तुम आगे जाके लड़की को कैसे देखो और लड़की को कैसे रहना है. तो क्या ये हैरेसमेंट को कम नहीं कर सकता है? या हमारे माइंडसेट, मतलब कि एक लड़के का माइंडसेट जो है, अगर वही बदल जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा हिंदू देश है, मानते ही, आप सभी मानते हैं. मतलब देखिए, अभी दुर्गा पूजा मनता है या फिर आपको सरस्वती पूजा मनता है, तो हम एक माँ को पूजते हैं, एक वुमेन को पूजते हैं. लेकिन एंड में जो रेप केसेस ज्यादा कहाँ होते हैं? इंडिया में हो जा रहे हैं बार बार. क्यों हो रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन था कि सर एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो रेप केसेस और ये जो भी आपने बताया ना अभी कि माइंड सेटअप, ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये हम लोग, आप और हम, ठीक है, आप और हम ही है जिनका माइंड सेटअप नहीं होता है. जब लड़कियां छोटे कपड़े पहन के निकलती है ना, तो उनको बोला जाता है कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उनको अपने आप पे कुछ फोकस करने के लिए आप बोल रहे हो, छोटे कपड़े पहन के दिखा रहे हो, ठीक है. तो ये माइंड सेटअप हम खुद करना पड़ेगा. एक मिनट, कंचन जी और आई थिंक राहुल जी थे, हम इस पे चर्चा करेंगे. आई कम टू दिस. पर्पस मेरा बैकग्राउंड बताने का यही है कि एक अपब्रिंगिंग एक फैमिली में कितना डिफरेंसेस ला सकता है. हम अपने माइंड को टेम करते हैं वैसे जरूरी है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लड़कियों को किचन में ही घुसाए रहे या लड़कों को बाहरी काम करने. हम जैसे जितने लोग अभी पार्टिसिपेंट भी हैं हमारे आज के सेशन में, इसमें लड़कियां भी है उतनी. हम एज ए वुमेन, आई एम वर्किंग, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. सो ये अपब्रिंगिंग है, वो एस्पेक्ट पे हम लोग आएंगे. और ये जहाँ तक रेप की बातें हैं, रेप पे हम लोग आएंगे. रेप एज एन ऑफेंस किस तरह का ऑफेंस होता है? इज इट जस्ट अ सेक्सुअल ऑफेंस और या फिर उसकी अलग भी कई सारे डायमेंशन? विल कम टू दैट. मेरा एक बैकग्राउंड बताने का पर्पस इसका ये है ताकि आप समझ सको कि ऑफेंस हो क्यों रहा है या फिर हमारी अपब्रिंगिंग में कहाँ कमी रह जा रही है जिस वजह से इस सोसाइटी में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऑफेंसेस हो रहे हैं वुमेन. अगर आप ऑनलाइन चेक करिएगा तो बहुत सारे कंट्रीज में इट्स हरासमेंट इज, और स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट बहुत सारे कंट्रीज में बहुत रैम्पेंट है, जिनको हम डेवलप्ड कंट्री भी कहते हैं, उनमें भी है. तो ऐसा क्या है जिस वजह से ये हरासमेंट का रीजन इतना बढ़ गया? और हमारे इंडिया में वो लॉज कैसे हैं जो इनको कैटर कर रहे हैं? ठीक है ना. अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी की, हमने कहा कि अपब्रिंगिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना. अब इमोशनल अपब्रिंगिंग, यू नो, लड़कियों को शुरुआत से टेम करना कि आपका घर ये नहीं, आपका घर जहाँ शादी होगा होता होगा. अब हो सकता है ये नहीं हो रहा हो या बहुत कम हो गया हो, क्योंकि अब मदर्स ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा दुनिया देखी है. दे अंडरस्टैंड व्हाट अभी भी होता है, अभी भी काफी मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होता, मैंने कहा पहले से आई एम श्योर कि कम हो रहा होगा. एंड इफ इट इज डिक्लाइनिंग, मैंने ये नहीं कहा कि बंद हो गया. इफ इट इज इन अ डिक्लाइनिंग पोजीशन, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड न्यूज. अगर इफ इट इज डिक्लाइनिंग, दैट्स गुड. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हरासमेंट, हरासमेंट कैन बी एट डिफरेंट लेवल. एक्सक्यूज मी निवेदिता जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से, ये जो डिस्कशन वाला क्वेश्चन है ना, डिस्कशन वाला जो बात है वो हम लोग बाद में कर लें. अभी मैडम को हम लोग बोलने दें कि मैडम का क्या व्यूज है, पहले वो सुन लें, नहीं तो डिस्कशन में कहीं डिरेल हो जाएगा वो. राइट सर. हाँ, तो उनको अपनी बात बता लेने दें. क्या
उनका We can have a session in the end. जो भी इन लोगों को डाउट होगा सर बाद में क्लियर करेंगे। बाद में लास्ट में मैम 10 मिनट 15 मिनट टाइम दीजिएगा। दूसरा चीज है जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबों से कि कृपया अपना कैमरा और अपना माइक दोनों ही ऑफ करें, क्योंकि कुछ लोग जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है रिसोर्स पर्सन के लिए। तो अभी हम लोग बहुत पेशेंस के साथ मैडम को सुन लें और उसके बाद फिर हम लोगों को जो डाउट है या अपना जो व्यूज है वो जरूर रखें। उसके लिए मैडम हम लोगों को मौका देंगे, है ना? थैंक्स निवेदिता। I'm so happy, sir, that people are coming up and participating in this talk and the discussion we are having today. I'm very happy कि जितने भी participants हैं यहाँ पे, all of them are actively listening to what I'm saying. That's a good plus point of the talk today. Now, मैंने upbringing की background की बात की, हम लोग family की background या family का परवरिश कैसे होता है और ये कैसे differ करता है. Now, we have laws to see that children, even at the house, they are not sexually assaulted, yeah, they are not sexually harassed. We have POSCO, prevention of sexual offenses against children. POSCO Act है जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों के against कोई sexual offenses नहीं होता. Now, जैसे हमने कहा rape तो is one of the most biggest heinous crime against a woman. But even otherwise, children, even when they are at home, they are being sexually harassed. And it's not by outsiders. It is actually done by the people in the house. कई बार होता है हमारे रिलेटिव ही बच्चों को हरास कर दिए, कई बार है कि बहुत जान पहचान के लोग घर में आके बच्चों को हरास कर दिए। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बार उनको अगर डरा दिया जाए या समझा दिया जाए, फुसला दिया जाए, they will not understand कि उनके साथ actually जो हुआ है वो सही है या गलत है. Now, sex education is important for the kids. They should understand, और especially जब बच्चे होते हैं, खासकर nursery 1-2 के बच्चे जो होते हैं, they should be taught कि good touch क्या होता है, bad touch क्या होता है. If somebody is touching you in a wrong way, how do you protect yourself? Every mother, irrespective of gender, I'm talking about today, because अब जो sexual harassment का जो cases आ रहा है इंडिया में, it's not just related to the women or the girls, it's also related to the boys. Boys are also being equally harassed. They are also being sexually harassed. बच्चों की तरह. तो बच्चों को we as a mother have to take up this duty to make them understand कि good touch क्या होता है, bad touch क्या होता है, and how to protect yourself. अगर कुछ लोग जो तुम्हें कर रहे हैं, and if you are feeling somewhat wrong about it, you should raise your voice. How अपने आप को बचाना कैसे है, this is what you have to teach your kids. Now, harassment of the kids एक जगह है. Now, एक लड़की है, when she starts her teenage life, there are a lot of physical change in a girl, and during that time there are a lot of change in her figure. There are a lot of emotional changes that she goes through. She may go through a lot of hormonal changes that during that period. ये वो time होता है when they are most vulnerable, because they are neither a child nor a grown up adult. They are ना बच्चे हैं ना adult हैं. उनको कैसे अपने क्या बोलते हैं, ऐसा रिलेशन बना के रखना है कि कल को बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच हो रहा है, या if they are not in a position to explain, they should be able to come and confide to us कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, how do I deal with situation like that. We have to make a more inclusive society. Now, the upbringing during the time of 1990s or late 80s, late 80s, 90s and early 20s, ये वो time है जहाँ पे parents did not give much of importance to the fact that girls can also be harassed within the family. कि किसी को बताना नहीं, शू ये सब बातें सबको पता नहीं होनी चाहिए. They had faced this phase. A lot of child abuse can be from the family members, from the society. So we as a mother have to make sure that the society, the family in which the child is being brought up, वो family बहुत inclusive हो, बहुत secure हो, और mother और parent को खासकर mother father दोनों को ऐसा relation बना के रखना है अपने बच्चों के साथ, ताकि कल को
if they face any kind of issue, they know where to go, किनको जाके बोले, और मेरे माँ बाप मुझे सुने. ठीक है, these are few things. Now, if we are talking about harassment at different times, now if we are start enlisting the kind of offenses that is there in the laws, starting from बहुत छोटी सी बात है, starting from लड़के पीछा करते हैं, which is a offense under Indian Penal Code. 2013 में जब निर्भया का कांड हुआ था दिल्ली में, I was there, I witnessed जो लोगों में रेज था, जो गुस्सा था लोगों के बीच में. I saw that 2012 का एंड आई थिंक नवंबर दिसंबर का ये इशू था. कैसे पूरा दिल्ली के यूथ रोड पे आ गए थे, इसलिए नहीं क्योंकि निर्भया के साथ बुरा हुआ, इसलिए क्योंकि women as such were not very secure in the capital of India. दिल्ली में जहाँ 24 घंटे लोग काम करते हैं, there are people on the road. An offense as grievous as gang rape and brutal murder, kind of murder in the end, she died in the end, a brutal assault, a grievous hurt to such an extent where she lost her life, ऐसा कुछ हो गया. So दिल दहला देने वाला situation था, people were on the road, they fought. क्यों ऐसा अचानक से क्या हुआ? क्या इंडिया में रेप नहीं होता था पहले, या क्या इंडिया में गैंग रेप नहीं होता था, या क्या इंडिया में ऐसा ये चीज हाईलाइट हुआ? एंड देन पीपल रियलाइज अ सिटी लाइक दिल्ली व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां ऐसा हो रहा, तो छोटी जगहों पे कितना आसान है इन चीजों को करना और फिर उसको दबा देना फैक्ट को कि भाई रेप हुआ. You just hang the people. And there are towns in few UP state and even Bihar, Jharkhand, where the gang rape is it's an assault. It's an assault on the society. It is, but however, it is kept hidden. यहाँ पे caste बहुत important role play करता है. I will not get into that aspect, but women of lower caste are also very sexually assaulted. Caste does play important role when we are especially talking about harassment of women. Now, harassment, अब हमने एक प्रॉब्लम देखा, एक हमने छोटा सा इशू देखा कि कैसे पीछा करना इज एक इंडियन पिनल कोड में एक पनिशेबल ऑफेंस है, कैसे सीटी बजाना, कमेंट पास करना, एसिड अटैक. Lakshmi Agarwal fought her case till Supreme Court of India, got 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ है, आप लोग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी लॉ स्टूडेंट, और इवन इफ यू आर नॉट, यू शुड जस्ट टर्न एंड सी 2013 में जो लॉज में जो चेंजेस आए हैं. पहले एसिड अटैक वाज जस्ट अ सिंपल ऑफेंस इन द सेंस कि वो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट में गिनाता था. ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस व्हिच विल मेक यू incapable of doing your daily course for 21 days. 21 दिन तक अगर आप अपना दिनचर्या नहीं कर पा रहे तो वो grievous hurt में गिनाता है. But क्या is acid attack just a simple grievous hurt? Is the attack on the face or on the body of the girl, is it just for melting your skin and bone and it touches your soul, it hurts you mentally. It's ये जो जितने offenses हैं against women खासकर, it is not just sexual or it is just trying to show जिसे हम कहते हैं वर्चस्व दिखाना अपना. उसने मुझे ना कैसे कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्रपोजल को इनकार कर दे या मेरे साथ मेरी बातों को नहीं माने. It is not the fight about a man and a woman, it is fight of an ego. उसने मुझे मना कैसे कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई. It is fight of that ego, how that lady did not satisfy my ego. तो उसको मैं जिंदगी का कहीं का नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी या whatever. So you attack a woman by acid and you make sure she is not in a position to survive. एसिड अटैक सर्वाइवल्स मेजरली बहुत लोग सर्वाइव कर लेते हैं, मेजरली नहीं भी कर पाते हैं. अगर बर्न इज way too much for them to recoup and to rebuild, and the number of surgeries the people tend to go during that time, it's very very high. Now I'm just giving you one simple example. एसिड अटैक तो एक चलिए एक बड़ा ऑफेंस है अगेंस्ट अ वुमेन. Now एक सिंपल एग्जांपल हम आपको देते हैं कि अगर आपके घर में
if you there is a very interesting example of something called gaslighting. Gaslighting is it's a kind of harassment also. It is kind of emotionally torturing some. हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको अगर अपने लोकल भाषा में ताना देके बात करना. There is a sarcasm that is involved in that. There is taunt marna, जिसे हम अपने local language में कहते हैं. And then you trying to diminish, you are trying to tone down the success of another person. Gaslighting can be done by male or female. This is gender neutral problem. Now, if these are the few issues. Now, if a woman, she starts working, कहीं भी काम करती है, so there are chances of she being harassed at a workplace also. Now, I'm not just talking about harassment of women at workplace, which is like a proper corporate office and you're sitting under AC, you're sitting on a table and chair. I'm also talking about unorganized sector, where, where जहाँ रेजी का काम होता हो, जहाँ खाने का काम हो रहा है, होटल है, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, we have this law, sexual harassment at workplace. ये पहले आया था Vishakha guidelines. There was a case that had happened in Supreme Court of India, and Supreme Court of India had enlisted, guidelines for human resource department to make sure कि अगर एक lady को harass हो रहा है, तो how the things are taken care of. But however, to make that law, sexual harassment at workplace, it took them 26 years, which is a very long time. जब 2013 में I think sexual harassment of workplace आया, तो laws तो थे, guidelines थे, but now we have a proper law. Now, एक चीज हमें बताइए, which is a very practical problem. If a lady who is working at a place where she is working, for example, in an organized sector. Now, if she's working in a place and she is being sexually harassed, or sexual harassment cannot just be an improper touch or improper way of approaching you physically. It can also relate to lewd remarks, बहुत गंदी remarks अगर आप किसी पे दे रहे हो, उसके मुंह पे बोल रहे हो, you're approaching her in a very indecent way, even though she's not interested. See, a woman as an adult, she is sexually free to get involved with any person she wants to. ठीक है? Two consenting adult, when they are together, they are free to have sexual intercourse. But harassment, the consent which is given by the woman, if it is under a क्या बोलते हैं उसको, pretext of getting married, or under a pretext of a long-term relationship, when there is a chance of a person abusing or emotionally capturing the other person, there are chances that the relation may not work first thing, and there are chances of women coming कि जो लॉज है हमारे यहाँ, जो सेक्सुअल हरासमेंट है, it's majorly for women. But then with the society that we are growing up, we have harassment of males also. Male are also harassed in a marriage. Male are also a victim of domestic violence. Male are also being harassed at the workplace sexually. अब now you will say कि मैम ये आप बड़े metropolitan cities की बात करी. हाँ, I am talking about big metropolitan cities, but they are also part of India, and majority youngsters, they are earning good, they are earning well, and they are working in these metropolitan cities. बहुत सारे youngsters जो हैं, they are making their career. So how do we protect? Now these laws have still they are not gender neutral. They are gender specific. Maybe few years down the lane, when the graph goes up, they'll make this law gender neutral. Now, sexual harassment at workplace is one thing. Then if a woman who is getting married, we have laws to make sure कि उसका dowry नहीं लिया जा रहा है ज़्यादा. Child
child marriage को हम लोग prohibit किए हैं. We have not abolished it. Now understand the consequences of writing abolition of child marriage and prohibition of child marriage. Now we have law to prohibit child marriage. अगर किसी लड़की का या लड़के तो बच्चों की अगर शादी हो जाती है before they attain the age of majority, तो वो शादी का क्या वैल्यू रहता है? Now imagine, for example, a girl, she is 16 years old or maybe 17 years old and she is married to a guy. Now she is a minor. So what happens is, if we abolish child marriage 100%, बंद कर दिया हमने कि नहीं भाई, child marriage is a sham, it should not be practiced, and whoever practices it will be sent behind bars. Now we have laws to abolish child marriage. इसका purpose इसका ये है कि when we are trying to abolish the child marriage, purpose इसका ये है कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है वो चाइल्ड मैरिज में, वो मैरिज से, what happens if we abolish the चाइल्ड मैरिज को अगर हम abolish कर देते तो वो बच्चा जो जन्म लिया वो क्या होगा? वो illegitimate हो जाएगा. So इंडिया में legitimacy plays a very important role if we are talking about the right over the property. If we are talking about the right over the property, the right of a legitimate child in a life, right of an illegitimate child is very different. Society recognizes a legitimate child. So what we have done is we have prohibited child marriage and we have not abolished it. However, the practice has reduced. I'll not say it has been completely over. अभी भी होता है, मैंने कई सारी शादियां देखी भी हैं. And I apologize that I could not protest in those marriages. But however, it is still happening. We try to convince the parents, but after a certain time, nobody listens. And it's better to shut your mouth and stay at times. So this is one situation. Now, when a girl is married, we have a lot to make sure that she's not made a victim of dowry. इतना दहेज चाहिए, but practically ये law कितना अभी functional है? क्या शादियों में अभी भी dowry नहीं दिया जाता है क्या? I think to a certain extent this act has been a failure. If we are talking about implementation of this particular law, there is some aspect of this law which is not very strong, and probably usko jab apply kiya ja raha hai, it is not being applied properly. There are marriages taking place, there are demands of dowry in some form or the other. You can ask cash, you can ask certain land, you can ask jewelry, you can ask household stuffs. So dowry need not be just cash, it can be asked in various forms and ways at the different times also, not just at the time of marriage, but it can also be asked later on after the marriage also, 2-3 saal tak, things like that. Now we have a dowry prohibition act has not been very rampant or has not been very functional if we are talking about its impact in the society. Now a woman, when she is married, she goes to her in-laws place. What happens then if she is being a victim victim of violence at home? सास ससुर मार रहे हैं, हस्बैंड मार रहा है, इन-लॉज मार रहे हैं, रिलेटिव्स पिटाई कर रहे हैं, मार कुटाई हो रही है. So you have law to make sure कि she is being protected. And how do we make sure the laws she is being protected? We have Domestic Violence Act, है ना? Domestic violence का purpose क्या है? A woman, when she is married, when she goes to her in-laws place, she is suddenly put into in a already matured functional family. एक family तैयार है, उसमें आपको बीच में घुसाया जा रहा है. So now when she goes in a family like that, she has to adjust at various levels, just to try to fit in that family. Maybe she has to compromise at her values, or maybe she has to compromise her style or way of living or her thought process, or there are various ways of adjustment and compromise. Now what happens if the woman is not able to adjust to whatever the set of society, the set of family that she's brought in?
there are chances of friction, and when there are chances of friction, there are chances of fights, and there are chances, 100% chance of abuse of the power. Now, what do you mean by abuse of the power? Now, if I'm staying at my in-laws place, and if I'm being abused by my in-laws, that means my in-laws are powerful. They have been in a situation where they can change my mindset, where they can manipulate my mindset. But डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम सिर्फ औरतें नहीं होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम मेल मेंबर्स भी होते हैं, where women tend to manipulate or tend to create chaos in the life of a man, and harassing him at a domestic front. So domestic violence act needs to be made gender neutral. It needs to be made more specific, relating to the kind of violences a person can suffer through. So I think we need to make changes in the laws over here. Now, harassment at workplace, we have seen what happens during marriage, we have seen what happens at domestic front, we have seen what happens at the dowry front. Now, when a woman, she starts working, she's being harassed. Now we are living in a world where we cannot even dream about having no connection with the world. I'm talking about the digital era. I'm talking about the time of use of social media, Facebook, Twitter, Instagram, and the various eras. Now, technology has played a very, very important role in our mindset, in our way of thinking. And thanks to technology, that I'm sitting in my room, in my office, and I'm talking to you all. So technology has its own positive effect, but then there are chances of, जहाँ पे कोई चीज होती है, there are chances of it being misused also. Now we have technology in place, we have laws, we have Information Technology Act to make sure that whatever laws are there, whatever technology we are using it properly. File बनाओगे, so they just ask you to fill in some date of birth. Now, for example, a person below 18 years cannot open their account in social media, but who's going to cross check कि मैंने उसमें भरा क्या है? I can fill in myself as being 80 years old or 18-year-old. Nobody's going to cross check me. It's at my whims and fancies. So practically asking somebody for their age to open an account on social media is just a sham. And अभी तो मैं भी देख रही हूँ, I'm seeing a lot of kids opening their account on Facebook. Now problem कहाँ होता है कि हमने फेसबुक में अपना खाता खोला है या इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट खोला है, कभी अच्छा लगता है, यू स्टार्ट, अब तो रील्स आ गए हैं, नाउ पीपल टेंड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट एंड ऑन सोशल मीडिया. People are trying to be friend with lot of people. Now, if a girl or if a boy also, in that matter, of a very tender age, jahan pe they are not very sure about what may be the effect of their action on the social media, they befriend certain people. Now for example, if अगर 15-16 साल का लड़का है या लड़की है जो अपना अकाउंट खोल लिया, फर्स्ट थिंग उन्हें अकाउंट खोलनी नहीं चाहिए थी, but however they have opened it, now they start making friends with random people on internet, they start chatting. And then there is chances that people may misuse your information, people may hack into your account, and then there are chances of the kid being misguided. There was a game that was going on, I think Q3 especially. Yeah, धनबाद का भी एक लड़का, he committed suicide, I think, because of this. End में था कि आपको हाथ में dolphin banana hai, and then you have to commit a suicide. That was the last task of that online game. And I'm sure all over India it has taken a lot of death, a lot of kids died because of this.
because they do not know the impact of technology and the misuse or the abuse of this. you know आग की तरह है ये, अगर आग को आप टेम करके रखो, it's of use, but when it goes beyond your control, it is just going to finish off everything. सब खत्म हो जाएगा उससे. Same thing applies with the technology. Now if you are using social media websites, what happens after that? So if a person is blackmailed, maybe I entered into chat with somebody, pretending to be a boy or a girl. This is one case that I handled over here in Hazaribagh. There was this guy who befriended a woman on Facebook. They had a long chat, and then they scheduled a video chat at a certain time late in the night. So what happened? This guy, he received a call from a girl, and then there was a lot of nude scenes going on, and they got involved in some not so proper way of talking. And this whole video chat was recorded by the lady, and this guy who had a chat with that girl on the phone the previous night, he got a call from that girl ki if you and mind you, that guy is a very reputed person in Hazaribagh. And now this guy, he got a call from that lady ki agar aapne mere ko certain amount of money nahi diya, then I'll spread this video of you and me, talking and talking this kind of thing. I'll make it open in public, and I'll make sure everybody in your family or in your circle knows about what you're doing online. Now what I, as a person, I'm an adult, that guy was an adult, he knew what he's entering into, and still he became a victim of online blackmailing. So these are the misuse. Now what options does he have? Now you may encounter such things, or you may encounter a situation where a person whom you know will create an account and ask you for certain amount of money. मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मुझे पैसा दे दो, and all those kind of things. Now if those things happen, so you as a law student, or as a lawyer, or you as a enlightened citizen of India, what all rights or what all options do you have? Now we have Information Technology Act, which is making sure these kind of things are not happening. If there is anything, any kind of blackmailing or any kind of harassment which is happening online, we have the cyber cell crimes, where crime can be reported, where things can be brought to the information of the police. They have उनका ना एक cyber cell है जहाँ पे ये सारी report हो जाती हैं. If now, for example, you entered into a chat with a lady, or a lady entered into a chat with a man online, and they had some we call it vulgar chats and all that, and now the other person is blackmailing or is trying to extort money. Extortion is a punishable offense under Indian Penal Code, है ना? IPC में ये extortion है, but extortion जब IPC में extortion डाला गया था, उस समय extortion का मतलब था कि आपने we are not using guns, but we are using some information which is acting against our reputation or acting against my good faith or my goodwill. So हम क्या करेंगे कि नहीं नहीं, आप मेरे ये सब बाहर मत निकालो, आपको जो पैसा चाहिए वो हम आपको दे दे रहे हैं. So what happens then? They start extorting money कि मेरे को 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, लाख रुपया दो, whatever the amount is. But for how long a person can cater to these kind of extortion? So therefore, it is very important if whenever these kind of call comes, or whenever there are chances of extortion online, the first thing you have to do is, yes, the first thing you have to do is you have to go and complain in the police, the cyber cell, the particular cell that has been made. You have to go complain over there. You have to, जो भी आपकी शिकायत हुई हो सकता है आपने बात की हो, but extortion of whatever money we are talking about, वो extortion को रोकना है. It's ultimately it's a crime. आप गन दिखा के मेरे से पैसा लो, या आप मेरे private informations को बाहर लीक करके पैसा लो, you are forcing me to release a certain amount of money, or maybe some kind of favors in some form or the other. Now these kind of blackmails should not be taken.
Now you can hire a lawyer, you can make sure whatever laws are there, you register your complaint under those sections. And no, there are laws, now. Pornography is actually banned in India, but however Information Technology Act is specifically talking about child pornography. You have section, I think section 67b, which is talking about child pornography. And if the victim is a minor or somebody who's below the age of 18 years, Information Technology Act makes sure these kind of things are not done, and it is punishable offense. 67A is actually talking about anything that is sexually explicit thing, using hidden camera, video clips, and those kind of things. All these are punishable under the Information Technology Act. Has made sure these kind of things are not taking place. At the same time, we have Indian Penal Code, which is catering to various sections to make sure कि ये सारी जो laws हैं वो situation can change. Now, whenever there is a violation of privacy of a person, now there was a time when phone tapping was a very big issue. अभी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में 28 मार्च को आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ है. So what is this actually? It is actually talking about, if you all are lawyers or belonging to law background, you will know DNA testing or these kind of testing cannot be done against, या फिर वो narco analysis जो होता है, that cannot be done without the consent of the person against whom on whom it is being done. So अगर अब ये जो नया बिल लाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि you need not take the consent of the person जिसका आप DNA सैंपलिंग लोगे या नार्को एनालिसिस करोगे. Now one way it is good कि भाई जो है DNA टेस्टिंग हो गया, हमने कर लिया कि उसका ये है, इसका ये है, वगैरह वगैरह, and things get sorted out. But what happens to your right to privacy? What happens to your fundamental right? What happens to it? आप किसी को DNA टेस्टिंग करा रहे हो या आप किसी का नार्को एनालिसिस कर रहे हो, is it not violating your fundamental right or the fundamental right of the person who is being accused of an offense? What if I'm not the one who has committed a crime? Will I be given a chance to substantiate what has happened? हो सकता है मुझे फ्रेम कर दिया गया हो उस ऑफेंस में, हो सकता है I may be framed in such a way that there are no nook and corner. So controversial है ये bill, I'm sure, but I'm sure they'll make changes as and when required. Now, these are few situations that I was talking about. We have laws, we have Information Technology laws, we have Indian Penal Code, we have to blackmailing, we have extortion. As I said, extortion, we have punishable. I think it's a punishable thing. It is a punishable offense, and I think the provision is for 3 years, and it's a non-bailable and things like that. Now, ये एक चीज आपको समझना होगा कि हम जो ये लॉज बता रहे हैं या ये जो सेक्शंस बता रहे हैं आईपीसी में, सीआरपीसी में, डिफरेंट लॉज बता रहे हैं, ये जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है ना, तो गवर्नमेंट का 2 वे ऑफ फंक्शनिंग है. Either one way of functioning is you try to punish something which has happened, जो हो चुका है उसको आप पनिश करने की कोशिश कर रहे हो. But there is also another aspect of it. You're trying to prevent something, and now we come to the prevention aspect. Now, I as a person, how can I prevent a crime which may happen against me? So how कैसे करें उसको? Now, government has taken steps. Childbirth में सरकारी, I think अस्पताल में एक certain amount mother को मिलता है लड़की पैदा करने पे. We have Sukanya Yojana. We are trying to bring girl mainstream, because half the population of India is that of the women. So if you are not providing them the proper opportunity or the proper environment, how will that person grow? जब आपके घर में आप एक गमले में पौधा लगाते हैं और वो पौधा सही से बढ़ नहीं रहा, तो आप पौधे को गाली नहीं दोगे, आप क्या को दोगे?
एनवायरमेंट को बोलोगे नहीं इसमें खाद सही नहीं है, पानी सही नहीं है, धूप ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, वगैरह वगैरह. Same thing applies with women. If a woman is not able to flourish, or even male up so we have to make sure the society is more inclusive. Now, if we are talking about inclusive society, I will, though it is not there in the topic that we have today, but I will also be talking about the third gender that we have, a gender which has been neglected for a very, very long time. भारतीय इतिहास में, खासकर हिंदुओं के इतिहास में अगर हम लोग बात करें, ट्रांसजेंडर्स, LGBTQs, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्विल्स, ये जो जिसको हम लोग रेनबो कम्युनिटी बोलते हैं, दे आर part of our society, same like a male, same like a female. They are also integral part of the society. If I'm talking about harassment, and if I'm not touching that rainbow community, it will be wrong on my part. If we are talking about making law gender neutral, purpose iska ye hai ki you have to be little more inclusive to include LGBTQ community in our society. We have to bring them, we have to be more inclusive and tolerant. वो है, और अभी से नहीं, वो हमारे वेद पुराण के टाइम से है. If I'm talking about Hindu, they have played very important role, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, they have a very important role to play. They had played very important role. अलग अलग साम्राज्य भी जब हमारे देश में राज किए, शासन किए, they played very important role. So now why, when we are calling ourselves very educated people, why are we not being tolerant towards them? Why are we turning blindfolded, आंख बंद कर लेते कि as though they don't exist? ये तो वही ऐसा हो गया ना कि आंख बंद करने से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है. They are part of our society and we have to be little more inclusive, little more tolerant. If we are talking about harassment, they are also harassed. That is the worst part. Now India में हमने 377 हटा दिया, स्ट्राइक आउट कर दिया, but what now? What? अगर हम उन्हें वो कर रहे हैं, have we as a society have been inclusive in accepting two gay people or two lesbian people together? We start mocking them, we start making fun of them. Why? We जब हमारा पुराना culture है where we have been very nice and tolerant towards this community, what has happened to us now? Why have we become so intolerant? Why are we fighting in the name of various things? And especially people belonging to rainbow community, why have we become so intolerant? Now, if you go to Western country and you try covering, there are few countries which recognizes these relations, but there are certain countries which is still not recognizing them. India mein you'll not see much of gay marriages or much of lesbians marriages. Transgender, they are not much part of our mainstream society. They are coming up, but they are still they have a lot of way to cover. बहुत उनको अभी रास्ता आगे बढ़ना है, बहुत पीछे है. So we as a law student, we as a voice of our society, we have to make sure we have to be a little more inclusive and more tolerant towards this rainbow community saying. And I would love to listen to all of you. If anybody of you has a bit of question or would like to add on to whatever I'm saying, is free to do that. I think I've become silent all of a sudden, so people are just like wondering. वो किन्हीं को इस ये जो टॉपिक था या जो मैडम बताई, उसमें कोई प्रश्न है या कोई अपना राय रखना चाहता है तो वो रखे. टू बिगिन विथ हम ही राय रख देते हैं. Yes, sir. एक जो हम लोग बहुत बड़ा रैम्पेंट देखते हैं अपने सोसाइटी में, वो ये है कि एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी लड़की के द्वारा या किसी लड़के के द्वारा भी, चलिए मान लेते हैं कि कुछ ऐसा एविडेंस, सो कॉल्ड एविडेंस, जिसको लोग एविडेंस के रूप में समझते हैं इन कॉमन जनरल पार्लेंस, जो है कि कोई एक वीडियो या किसी के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो अगर कुछ ऐसा है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट
टूल बन जाता है वो ब्लैकमेलर के लिए, वो ब्लैकमेल करने के लिए, जैसा आप केस में बता रही थी। हाँ, और जो आपने हजारीबाग में हैंडल किया। तो अब ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज जो ऐसे मामले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह के एविडेंस का इस्तेमाल कोर्ट में सिर्फ इस बात के लिए किया जा सकता है कि किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इस बात के लिए नहीं किया जा सकता है कि किसी का कैरेक्टर खराब है। हाँ, न तो ऐसे भी सर, आई थिंक इंडियन एविडेंस एक्ट इज क्लियर, कैरेक्टर एविडेंस ओनली व्हेन इट इज रेलेवेंट। राइट। तो ये चीज हम लोगों को समझना बड़ा जरूरी है, और हर लॉयर को और हर लॉ स्टूडेंट को, और इनफैक्ट जो आम जनता है उन सबको ये समझना जरूरी है कि इस डर से कभी रुकना नहीं चाहिए कि जज क्या बोलेंगे, कोर्ट क्या बोलेगा, पुलिस क्या बोलेगा, समाज क्या, है ना। समाज जो बोलेगा बोल ले। हाँ, समाज भी अब समझने लगा है, लेकिन कोर्ट में तो बिल्कुल ही इस तरह का एविडेंस अगेंस्ट द विक्टिम नहीं एडमिट किया जाता है। तो एक तो ये मेरा राय है, और बाकी अपना अपना राय जो अन्य लोग हैं वो अपना दे सकते हैं। Anyone has any question? I think there was somebody, there were people who wanted to talk. People, right now suddenly they have become silent. Yes sir, I'm so sorry sir, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया था, सॉरी मैम। नहीं, that's okay. मैं सर, आपने कहा कि ब्लैकमेल के बारे में सर, क्या कैरेक्टर जो हमारा, मान लीजिए कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, ये चेंज नहीं कर सकता है कि आगे चल के एविडेंस में इसे बदल नहीं सकता है कि भाई हाँ तुमने तो ये गलत काम किया है। एक तो मतलब एडल्ट्री ये हट गया है सर, लेकिन पोर्नोग्राफी भी तो मतलब देखना तो इलीगल है। नहीं, देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि अगर हमने कोई गलत काम किया, that entitles the state to punish me. That does not entitle Rohit Singh to blackmail me. यहाँ पे मुद्दा आ जाता है कि रोहित सिंह क्या ब्लैकमेल करने का प्रयास किए। अगर ब्लैकमेल करने का प्रयास किए तो वो पनिशमेंट के अधिकारी है, लायबल टू बी पनिश्ड। अब वहां पे अगर रोहित सिंह बोलेंगे कि देखिए ये राजेश जी जो हैं उनका कैरेक्टर गड़बड़ है और उसके एविडेंस में हम ये चीज दे रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर है ना। कैरेक्टर एक डिफरेंट चीज है। कैरेक्टर मेरा जो भी रहे, आपको ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं मिलता है। Sir, I will like to add on to what Rohit is saying. I would like to address. रोहित जी, चीज ये है कि हम लोग जब एविडेंस एक्ट अगर आप पढ़िएगा तो उसमें कैरेक्टर एविडेंस के बारे में बात होता है. When is a character of a person, a good or bad character of a person, relevant? Now, if we are talking about an offense which is character itself is a question, या फिर when we are trying to उसका punishment हम लोग allot करें, क्या वो पहले भी previously convicted है, क्या वो offender जो है वो क्या हमेशा offense करता है, these things will play an important role. क्या civil में इसका क्या role है. But जब कोई offense होता है किसी के खिलाफ, now for example a girl was engaged in talking to a guy, maybe some relation in some form or the other, and they got intimate. As an adult, they can come together, they can have a relation of their own, but using that relation, pictures or videos or chats, those things are wrong. You know, you're trying to abuse or misuse. मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं ये सारे photos, ये सारे videos leak out कर दूंगा. Maybe when two adults, they come together, they can get engaged in sexual relations. Law मना नहीं करता है इसमें, ठीक है. Law इस मामले में कभी नहीं बोलता है कि two adults cannot. My saying is two adults can consenting adults can come together. Now if two adults are together and they are having a relation,
and the other person, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, they try to misuse those pictures or those videos or those calls, chats. तो वो जो उसको जब रिलीज करते हैं तो that is abuse, that is misuse, and that needs to be addressed. You have to complain to the, ठीक है, if a person was in a relation with some other person, that's okay, that is not a big deal. इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोगों को कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य जीवन ही व्यतीत करना है, and this is the ideal life you have to lead, but factually ऐसा नहीं हो रहा है, and we have to accept that fact. नाउ आप फैक्ट से आंख बंद कर लेते हो, इसीलिए डर से लोग बाहर पुलिस में नहीं जाते हैं कि सबसे पहले कैरेक्टर ही बता रहे, तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़के से इतनी बात करने की, तुम्हारे ही कैरेक्टर में कुछ खोट होगा। नहीं, इफ यू आर एन अडल्ट एंड इफ यू आर involved with some other consenting adult, that's fine, that's normal, and you have to accept this are sexually engaged, that era is over now. You have to accept the fact that people are sexually engaged even before marriage. Now if there is a situation where the people are being extorted money, or they are being blackmailed in some form or the other, we as a citizen and police, in fact, जिसको आप जाके कम, they have to be little more compassionate, चाहे वो लड़का कर रहा हो चाहे लड़की कर रही हो complain. There has been abuse and that needs to be reported. That is the thing. So ये कोई अच्छी बात नहीं है। अडल्ट्री का जहां तक आपने बताया, अडल्ट्री तब होती है जब एक पर्सन शादीशुदा हो and then that person gets involved with somebody else. Definitely adultery को अब offense नहीं माना गया है, but adultery is still a ground for divorce. It's still a ground. Adultery के लिए husband punishable नहीं है। Adultery का जब section आप देखिएगा तो adultery है, it's an offense against a woman. कि some other guy has been, but adultery is not just committed by men, it is also committed by a woman. आप जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, women are liberated economically, financially, sexually. So adultery has been striked out, and adultery has been made a gender neutral ground for divorce. If a girl has been in a adulterous relation, girl matlab wife has been in an adulterous relation with some other guy, husband can go for divorce on ground of adultery, and vice versa. Adultery is a ground for divorce, but जैसा आपने कहा, it is no more an offense, punishable नहीं है वैसे. Anybody else? It is just a talk, it's not a lecture. हम जानना चाहेंगे आप लोग क्या सोचते हैं इस सब के बारे में. हेलो मैम, थोड़ा हिंदी में बोलिए. हम तो लगा कि हिंदी ही बात कर रहे थे शायद. मैम आपका मतलब इंग्लिश भी ठीक है मैम, मतलब हम लोग को तो थोड़ा आ नहीं रहा बोलने के लिए. मैम मैं पूछना चाह रहा था कि जो पुलिस है मैम, जैसे एक लड़की के साथ कुछ ये एडल्ट ये ब्लैकमेलिंग का कुछ केस हो गया, तो वो जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस ठीक से बात नहीं करता है उससे, उल्टा उसी को बदलना है. वही तो बदलना है. यही बदलना है मैम. कोई कितने मैंने देखे हैं कि एफआईआर तक नहीं लिखते हैं. एफआईआर देखिए रोहित जी, ऐसा है कि आप क्या करते हैं, पहले मुझे ये बताइए, क्या आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं? नो मैम, मैं स्टूडेंट हूँ. मैं सॉरी बताने चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट. तो एक चीज आपको बहुत दुखी या फैक्चुअल बात ये नजर आएगी कि एफआईआर इन जनरल नहीं लेते हैं पुलिस. एफआईआर इसलिए नहीं रजिस्टर करते हैं क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो गया तो सिर्फ हाई कोर्ट को पावर है वो एफआईआर को क्वॉश करने का. तो एफआईआर जल्दी नहीं लेना चाहते हैं, वो कह देते कि आप ऐसे ही एक चिट्ठी लिख के दे दो, विल ट्राई रिजॉल्विंग इट एट आवर लेवल. और ये सिर्फ ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन नहीं, ये इन जनरल है सभी चीज के लिए. वो एफआईआर लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार एफआईआर लिख दिया, सीआरपीसी आप लोग पढ़े होंगे, तो एफआईआर अगर लिखाता है 154 या 155 में, तो आप एफआईआर इज नॉट अ वर्ड बट हाउएवर, तो दे हैव टू स्टार्ट ऑफ विद देयर इन्वेस्टिगेशन. उनको आईओ बैठाना होगा, इनको पूरा इन्वेस्टिगेट करना होगा मैटर, पुलिस रिपोर्ट बना के एसपी को दे के फिर वो पूरा इंक्वायरी बैठेगा और फिर वो पूरा ट्रायल होगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट इज इन्वॉल्वड इन राइटिंग जस्ट एन एफआईआर. इसीलिए दे अवॉइड राइटिंग इन एन एफआईआर, क्योंकि एफआईआर अगर एक बार लिखा गया तो सिर्फ हाई कोर्ट को ऑर्डर मतलब अथॉरिटी उसको क्वॉश करने का, कोई नहीं कर सकता उसको, मैजिस्ट्रेट भी नहीं. यस मैम, ये जानकारी थी मेरे को थोड़ा बहुत, लेकिन आपने बताया तो बहुत बढ़िया बताया मैम. लेकिन
सिर्फ एफआईआर से मैं ये नहीं कहना चाहता कि एफआईआर नहीं मतलब होने से ही कुछ करे, लेकिन कुछ कुछ कहते हैं कि एफआईआर नहीं किया, क्यों नहीं किया पहले। ये भी होता है ना क्वेश्चन कि भाई केस जब आगे बढ़ता है या बाद में पूछा जाता है कि भाई ये तुम्हारे साथ ब्लैकमेल हुआ था, तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया, पहला चीज तो ये देखिए पूछेगा। कई बार होता है ना कि हमारा लॉ भी इस मामले में बहुत क्लियर है कि अगर बंदे ने एफआईआर नहीं किया तो आप कंप्लेन केस फाइल कर सकते हो। कंप्लेन प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी 200 to 203 तक है। अब ये भी ऑर्डर हो गया है कि आप जैसे ही कंप्लेन प्रोसीडिंग फाइल करते हो आप इमीडिएटली चिट्ठी साथ के साथ एसपी को डिस्पैच करोगे। तो कहीं ना कहीं जब लॉ बन रहा था तो दे वेर नोइंग कि हो सकता है पुलिस इस पावर का अब्यूज करे या मिसयूज करे या एफआईआर दर्ज नहीं करे, तो हमें एक ऑल्टरनेटिव दे दिया गया कि भाई अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक कंप्लेन केस फाइल कर सकते हो विच इज अंडर 200 ऑफ सीआरपीसी। अब कंप्लेन प्रोसीडिंग शुरू हो जाए जिसमें इंक्वायरी बैठेगा, इंक्वायरी होगा मैजिस्ट्रेट के थ्रू। इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन, जिसको इन्वेस्टिगेशन आप बोलते हैं एफआईआर के थ्रू, वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू इंक्वायरी कहलाता है। और जब वो इंक्वायरी बैठता है तो पुलिस काम वही करती है, बट देन इट इज अगेन सुपरवाइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। सो प्रोसेस वही है, पुलिस के ही पास आना है। मगर पुलिस अगर एफआईआर नहीं ले रही है तो आप उसको कंप्लेन प्रोसीडिंग में फाइल करके यू कैन गो टू द कोर्ट। यू हैव दैट ऑप्शन। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे रोहित जी ने कहा कि अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो अक्सर देखा है, सुना जाता है कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ मैम, फिर वो किसी हालत में कुछ बस पकड़ के या टैक्सी पकड़ के आगे जाती है, उसको नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन दिखता है वहाँ पे जाके बताती है। फिर पुलिस से पूछते हैं कि नहीं आपके साथ जो घटना, जो रेप हुआ है, जो भी गलत कुछ हुआ वो हमारे एरिया में नहीं हुआ है, तो हम यहाँ चूँकि हमारे एरिया में नहीं हुआ है तो ये पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर नहीं लिखेगा मैम। लोग शायद एरिया वाइज बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं हुआ है तो हम लोग आपका एफआईआर नहीं लेंगे, इसे देखने या सुनने को मिलता है मैम। तो क्या ये सही है? निकिता जी इस कंडीशन में निकिता जी हम तो 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यस मैम। यस, थैंक यू नरेश, आई थिंक जिन्होंने बताया। 0 एफआईआर ऐसा नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट है। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत हाईलाइट हुआ है निर्भया कांड के बाद। जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है वो कोर्ट के पास भी एफआईआर का ना एक रजिस्टर होता है, तो आप उसमें नंबरिंग ना देख के आप उसमें 0 लिख के एंड देन यू फिल इन द फॉर्म। आप कोई भी पुलिस स्टेशन के पास ये पावर है। अब ये हाईलाइट हो गया, एवरीबॉडी नोज इट, तो पुलिस भी कोशिश करती है कि इसका मतलब 0 एफआईआर कर ले। मगर मैटर्स रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, खासकर स्पेशली रेप वगैरह होती है, सबसे पहला जो होता है वो है मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल जांच होती है विक्टिम का। निर्भया कांड के बाद अब तो निर्भया एक फंड भी बनाया गया है जो विक्टिम होते हैं उनके रिहैबिलिटेशन को लेके। आई डोंट नो कितना फंड उसमें जमा हुआ, बट देयर आर वेज ऑफ रिहैबिलिटेटिंग देम। क्योंकि जब भी रेप होता है इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द फिजिकल assault, it is not just related to her sexuality, it is also related to her mentality। दिमाग में कहीं ना कहीं वो बहुत हैम्पर करता है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू रिहैबिलिटेट देम, यू हैव टू गिव देम काउंसलिंग। और जहां तक एफआईआर का बात है, एफआईआर नहीं करेंगे का ऑप्शन अब खत्म हो गया। दे हैव टू डू, स्पेशली इफ इट इज रिलेटेड टू मैटर्स लाइक दिस। ओके मैम। मैम कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि कोई विक्टिम के साथ बहुत साल पहले, इवन आफ्टर 10 years या 5 years बाद वो कोई लेडी आके बोलती नहीं मेरे साथ तो कुछ हुआ था, ऐसे केसेस भी आते हैं सुनने को। उस कंडीशन में फिर पुलिस क्या बोलती है कि आप इतना साल बाद क्यों आए? देखिए जो हमारा पिनल लॉज है इंडिया में, इसमें कहा जाता है कि जितना जल्दी ऑफेंस का आप रिपोर्ट करोगे, आपकी वायबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी, आपका केस उतना स्ट्रांग होगा, है ना। आप जितना डिले करोगे अपना ये बताने में अपना केस को, आप उतना ही केस को अपना ये क्या बोलते हो हराने, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। अर्लियर जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपना केस के लिए एफआईआर दर्ज करने जा रहे हो तो डू इट इन द सेम ट्रांजैक्शन। क्योंकि अगर आप मान लो मेरे साथ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल वायलेंस, अगर मान लो किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा और मुझे बहुत हर्ट किया, मुझे ग्रीवियसली हर्ट किया, तो अगर हम मान लो फॉर लड़ाई में वैसे हो गई,
तो हम मेडिकल ले अपना ट्रीटमेंट करा के जो फर्स्ट एड है हम तुरंत थाना चले जाते हैं, ये एक प्रोसेस। या फिर हम मेडिकल करा के घर आते हैं और 2 दिन के बाद एफआईआर कराते हैं वो। तो जो एफआईआर 2 दिन के बाद हुआ तो देर आर चांसेस कि जो मैंने जो उसमें जो इवेंट्स डाले हो या मैंने जो उसमें किसने क्या कहा वो एस्पेक्ट डाला हो, तो हो सकता है कि हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। मगर ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप तुरंत करते हो तो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इज वेरी लेस। मैम मीटू का जो चला था उसमें बहुत सारे केसेस प्रिंट हुआ था, तो उसमें पढ़ रहे थे मैम, बहुत सारी लेडीज मीटू में जब बोलने लगी तो बहुत सारी लेडीज को एक्चुअली क्या है, दिस इज वन, आई एम सॉरी वी डिड नॉट कवर दिस एस्पेक्ट। मीटू का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ क्या ना, starting western side, every woman, technically I'm talking about, every woman at some point of the time she has been abused. ट्रेन पे चलते हुए, रोड पे चलते हुए, बस पे चढ़ते हुए, घर में परिवार वालों से, some point or the other she has been abused. Now we had lived in a society, I'm not talking about the younger generation, I'm talking about generation of mine and before that, women were not allowed to discuss things like this. इनफैक्ट अगर कोई छेड़ता है एक लड़की, हवा दी है, हम वो सोसाइटी से बिलोंग किए थे, या वो मेंटालिटी रही थी हमारे सोसाइटी की कि इफ थिंग्स लाइक दैट हैज हैपेंड विद द गर्ल तो मतलब उसी का कैरेक्टर खराब है। पीपल प्रिफर्ड रिमेनिंग साइलेंट एट दैट टाइम। Society which is more open, which is more tolerant, which is listening to their issues, and therefore we are coming up with this concept of me too. I had been abused, I had been, manipulated, I had been free sexually, whatever way I have been abused. People brought this movement just to make sure कि जो उनके साथ हुआ है वो एक्चुअली अगर रिपोर्ट नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ है, and women preferred to remain silent. ये बात हुई थी, which is changing now. अगर मैम अगर रिपोर्ट हुआ है तो हुआ है, अगर ये रॉन्गफुल भी हो कि मगर किसी को अगर फंसाने के लिए ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा है तो इस कंडीशन में भी वो उसको पनिश मिलेगा क्या? किसको? जो फंसा रहे हैं उसको मिलेगा। देखिए, अगर हम किसी को फंसा रहे हैं तो कोई भी ट्रायल जब होता है कोर्ट में तो वो प्रॉपर एविडेंस के थ्रू होता है ना। दोनों तरफ के लॉयर्स होते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो या जो पार्टी को, जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो लॉयर्स दोनों तरफ से हैं। आपके एविडेंसेस अगर प्रॉपर नहीं है, फिर नॉट एबल टू प्रूव, तो फिर ठीक है, खत्म हो जाएगी कहानी वहीं पर। निवेदिता मैम, मेरी तरफ से मैं निरंजन मिश्रा। नमस्कार जी नमस्कार। मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और एलएलबी मैंने किया है और पिछले साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए एडवोकेट। ठीक है ना, बहुत अच्छा। जमशेदपुर में जी। तो बहुत अच्छा लगा। आप मैं शुरू से ही आपको देख रहा हूँ इसमें, लेकिन थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन है मैम, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्लियर है कि वी ऑल हैव टू ऑब्जर्व लॉ ऑफ द लैंड, ये सेटल्ड है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे भारत में एक समय वो था, है ना, जब क्या कहते हैं कि द्रौपदी का एक चीर हरण के समय में, तो हम लोगों ने विश्व युद्ध भी किया इस बात के लिए। जब अभी मैं टेलीविजन पर एक डिबेट देख रहा था तो उसमें कह रहा है कि लक्ष्मण से जब पूछा गया कि ये भाई कान की बाली तुम्हारे भाभी की है कि नहीं, तो लक्ष्मण कहता है मैंने तो आज तक चरण ही देखे हैं माता सीता का। ठीक है ना। ऐसे भी हम लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि त्वमेव माता चौपिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। हम लोग उस भारत से बिलोंग करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में और आज के लॉ ऑफ लैंड जो हम महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए जो आज की परिस्थितियां हैं, तो मैं आपसे एक सवाल यही जानना चाहता हूं
कि क्या आप सेटिस्फाइड हो कि क्या ये जो लॉज हैं हमारे लैंड के, ये हमारी बहनों को, माताओं को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल है, या और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए विथ कंपेयर टू आवर एंसेस्ट्रल सेटअप? निरंजन जी, आपका जो क्वेश्चन है, इट इज उसका सवाल का जवाब बहुत बड़ा है, बट आई विल ट्राई जितना कम शब्द में हम समझा सकें। देखिए, जो सोसाइटी में हम लोग बिलोंग करते हैं, वो सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुआ, ये आपको समझने की जरूरत है। और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि हम लोग जिस सोसाइटी में बैठे हैं वो है पितृसत्ता, वहाँ मेल डोमिनेंस रहा है थ्रू आउट, अच्छी चीजों पे भी और बुरी चीजों के लिए, दोनों, इसका दोनों प्लस माइनस दोनों है। नाउ हम जिस हिंदू कल्चर की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, औरतों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। औरतें यज्ञ में भी बराबर के अधिकार थी, औरतें अकेले यज्ञ भी कर लेती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। इवेंचुअली औरतों का जो स्टेटस है सोसाइटी में धीरे धीरे डिटोरिएट किया, क्योंकि देयर हैज बीन एडवेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट किंगडम्स एंड राज वगैरह। तो सोसाइटी इंडिया में जो हिंदुइज्म है, वहाँ औरतों का जो सोसाइटी में जो स्टेटस है वो मर्दों से ऊंचा है। हम हर चीज को माता बनाते हैं, भारत माता, गंगा माता, सब माता, एवरीबडी इज मदर एंड सिस्टर्स एंड एवरीबडी इज दे पूजनीय, सबको पूछते हैं। बट हाउएवर जिस सोसाइटी को हम लोग, जिसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है। निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जहाँ तो हम औरतों को पूछते हैं, और जहाँ एक औरत की वजह से महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वहीं पे औरतों का सिचुएशन इतना खराब हो गया है कि तो ऐसा नहीं है कि पहले रेप नहीं होते थे, या ऐसा नहीं कि औरतें सेक्सुअली अब्यूज नहीं होती थी, बट बहुत रैम्पेट हो गया, या हम कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा हाईलाइट होते जा रही है मैटर, क्योंकि लड़कियां अब आके खुल के सामने बोल रही हैं। तो हम लोग एज अ सोसाइटी बस यही कर सकते हैं कि वी एज अ मदर और फादर, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो जेंडर न्यूट्रल जनरेशन, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाए। पहले आप इंसान बनो, बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड देन यू कैन डिवाइड योर जेंडर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। ठीक बात है, लेकिन मेरा एक कंक्लूसिव क्वेश्चन था कि क्या आप फील करते हो कि नहीं, आज हमारे पास जो लॉ है वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एडिकेट है या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? क्योंकि आपने बहुत कुछ बताया, हमको लगता है कि काफी एक्सपेरिमेंटल है और बहुत अच्छा था। तो इस कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो कि ये एडिकेट है या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? हमारे पास जितने लॉज हैं ना इंडिया में, स्पेशली रिलेटिंग टू वुमेन, लॉज आर गुड। प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। समय के साथ हमें लॉज भी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इसको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिर मैटर्स रिलेटिंग टू चाइल्ड बर्थ या वैसा कुछ। देखिए, लॉज बहुत अच्छे बनते आ रहे हैं सोसाइटी के हिसाब से। डायन प्रथा, इस पे तो मैंने बात भी नहीं की। लॉज बनते आ रहे हैं समय पे बहुत सारे सोशल इवल्स को कवर अप करने के लिए, मगर कितने ये लॉज लागू कर पा रहे हैं हम लोग? हाउ मच आर वी एबल टू सिंक्रोनाइज आवरसेल्फ विद द लॉ? अल्टीमेटली बात आप पे और हम पे आके रुक जाती है। क्या हम इस सोसाइटी में जो चेंजेस लाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ लॉ, क्या हम वो कर सकते हैं? क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है? क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि women, once she attains a majority, she can have her own choice of deciding her partner? हम लोग अभी भी वो सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पार्टनर मतलब दे रहे हैं। तो when parents are deciding our life partners की हम किसके साथ रिलेशन बनाए, I don't know how far our society, or how much time this society will take to come to a generation जहाँ पे
वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिसीजंस। हमारे डिसीजंस अभी भी हमारे पेरेंट्स ही लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई क्या करनी है, चाहे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज आल्सो। तो लॉज जो है हमारे पास एडिक्वेट है, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। कुछ चेंजेस लाने हैं उनको आप जेंडर न्यूट्रल कर दो, बट एट द सेम टाइम जो लॉज हैं अभी इंडिया में उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। आई थिंक हाउएवर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब तो कॉमन सिविल कोड आ रहा है मैम, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा, है ना? इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। हाँ, मिश्रा जी अभी अभी मुद्दों को छोड़े, अभी टॉपिक पे ही फोकस करें। हाँ मैम, यस, पिछले साल एक बॉम्बे हाई कोर्ट का आया था कि कपड़े से ऊपर लड़कियों को टच करना ये कोई अपराध नहीं है। आई थिंक वो आगे चल के फिर निरस्त भी कर दिया गया था, उसको फॉलो अप कर लेते थोड़ा सा। उसको एक्ट में आया था वो। देखिए, relation with a boy or a girl who are having relation with each other, that's not a problem as long as they are adult. But misuse of that relation in form of making videographs or leaking some intimate information, that is wrong, that is wrong. तो इसमें तो मैम कहीं ना कहीं कि हमारा समाज का भी तो बहुत बड़ा हाथ रहा है, लड़कियों को दबाने में, लड़कियों को किसी चीज को बोलने में, खुल के बोलने में, हर जगह से बहुत बड़ा समाज का रहा है। इवन किसी लड़की का अगर रेप होता है या किसी के साथ कुछ अश्लील हरकत होता है तो उनके गार्जियन पर जो अपनी माँ से लड़कियां बोलती है या फादर से, तो वो उस मैटर को दबा देते हैं कि बाहर जाओगे तो हमें बदनाम होंगे, हमारा घर बदनाम होगा, फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये वाला जो अभी का जो ये सिचुएशन है मैम, ये कैसे हैंडल हो सकता है? ये आप और हम मिलके करेंगे चेंज। वी हैव टू चेंज दिस। जी मैम, वी हैव टू नीड, हम लोग को ना ये फीमेल पुलिस ऑफिसर भी ज्यादा अपॉइंट करना चाहिए, लड़कियां खुल के बात करती हैं। I think we can do one thing, all of us can make a group, we can discuss on things like that, and maybe we can send a representation to the ministry कि these are the हमने एक शोध किया इस मैटर पे और हम लोग ये डिसीजन पे उतरे हैं कि अगर आप ये करोगे, these are the pointers, if you follow this, women in the society will be more approachable, they will be more allowed to come in mainstream. तो अच्छा, it's good, actually we can do something of that sort. हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा ये कहना है कि जैसे समाज तो डेवलप होते गया, लेकिन जो बच्चे हैं यानी कम एज के बच्चे, उनके द्वारा भी अब धीरे धीरे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मैम, आज ही का एक न्यूज है, झारखंड में एक 12 साल के लड़का एक 5 साल की लड़की का रेप किया और वो अरेस्ट हुआ है। मैम इतने कम उम्र में ये सब आदमी में धीरे धीरे आते जा रहा है। मैम, इसको रोकने की सबसे पहले जरूरत है। अब इसको हम लोग कैसे रोकेंगे? सेक्स एजुकेशन मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा ना मैम। इतना छोटे बच्चा जो 12 साल का है मैम, वो 5 साल की लड़की का रेप करता है। आज ही की घटना है ये, झारखंड में खूंटी का। तो रीजन क्या हुआ होगा? कभी इस पे शोध करिए, क्या क्या सोसाइटी, क्या अपब्रिंगिंग में वो बढ़ा है और किन चीजों का उसको एक्सेस है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, सबसे बड़ा ये मिसयूज तो ये मोबाइल का है मैम, कि मतलब बच्चे इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी इज नॉट रॉन्ग, अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं, वी एज अ गार्जियन वी हैव टू मेक श्योर द किड्स, हमें परवरिश ऐसी देनी है ना कि बच्चों को सीधा मार्ग समझ आए। वी एज अ गार्जियन, आप लोग, कई लोग शादीशुदा होंगे, कई लोगों के बच्चे होंगे या जिनकी शादी नहीं हुई है, वी एज अ गार्जियन वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम सोसाइटी तैयार करेंगे वो हमारे बच्चों से ही होगा। तो वी हैव टू मेक अ सोसाइटी व्हिच इज मोर न्यूट्रल, मोर टॉलरेंट और जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी हो, कोई लड़का लड़की का वैसे नहीं। और जहां तक अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये तो रहेगा, इसको मिनिमम कैसे किया जाए ये हमें सीखना होगा। मैम, आप सही बोल रहे हैं, जो पेरेंट्स का रोल होता है बच्चों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट। जिस मैम, आपने जो सर ने अभी बोला कि 14 साल का लड़का ने रेप किया गया, उसमें देखिएगा कि कुछ ना कुछ पेरेंट्स में कमी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है ना, लेकिन पेरेंट्स में कुछ कमी हुई कि वो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, बात नहीं कर पा रहे हो या उससे
वो कम्युनिकेशन गैप बहुत बहुत सारे। देखिए, अगर एक आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड है या कुछ ऑफेंस कर रहा है, उसका बैकग्राउंड आप चेक जरूर करिए। देयर मस्ट हैव बीन सम सिचुएशन व्हिच वाज अगेंस्ट हिम और हर, एंड देन इवेंचुअली बहुत चीजें होती हैं। मैम क्योंकि ये एक तरह का क्राइम ही है, तो क्राइम करने के लिए आदमी को मतलब जो रेप है एक तरह का क्राइम ही है, तो वो क्यों कर रहा है? ये कुछ वजह होगा, इसी वजह से उसने किया होगा। वजह इसका ये है ना, रेप का वजह सिर्फ एक होता है कि अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करना। यस मैम, Does या not, आप there's nothing else. मेल एजुकेशन मतलब कि मेल इस पे मैं थोड़ा सा अति किए थे, थोड़ा सा कुछ दिन पहले हम इस पे पढ़ रहे थे, तो हम देखे कि इंडिया में खास करके भारत में जो ये सेक्स वाली ये रेप वाली जो घटना होती है, ये होता है कहीं ना कहीं हमारे समाज में दोष है। एक्चुअली हम जब एडल्ट होते हैं, जब हम उस उम्र में जाते हैं, तो हमें बताया नहीं जाता है सेक्स करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो ये हम पोर्नोग्राफी देखकर सीखते हैं या कोई अश्लील वीडियो देखकर सीखते हैं, और उसी को देख के करने के लिए किसी का रेप करते हैं। इसके लिए हमें लगता है कि हमारे जो समाज में है या जो हमारे पेरेंट्स हों, इसके लिए बच्चे को या हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी दें, तब ये चीज लगता है रुकेगी। इजहार जी कुछ दोस्तों से भी सीख जाते हैं कि यार बस वही कि अगर पेरेंट्स नहीं, लोगों में लड़कियों के प्रति एक जागरूकता जो चल रही है वो रेगुलर वो चलनी चाहिए। अभी क्या होता है ना, किसी के साथ अगर रेप हो जाती है तो वो कहीं ना कंप्लेंट नहीं करती कि डर से कि हमारे घर में क्या सोचेंगे, अगल बगल पड़ोसी क्या सोचेंगे। इसके चलते से जो रेप करने वाले लोग जो होते हैं वो उसके प्रति एक भावना बन जाता है, ताकि वो बढ़ते जाता है कि अरे चलो ये एफआईआर दर्ज नहीं किया, ये केस नहीं किया, तो आगे चल के वो और अपना संख्या को बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से और क्राइम हो जाए। अगर लड़कियां अगर जागरूक हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो कहीं ना कहीं हम लड़कों का जो पैट्रियार्कल समाज है मैम, ये हम दिखाते हैं कि हम पुरुष हैं, और ये जो अधिकतर जगह यही होता है कि हम अपनी पुरुष दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम मर्द हैं, इसके लिए बहुत से जगह पे रेप जैसी घटनाएं होती है या छेड़छाड़ की भी जो घटनाएं होती है, ये बस ये बताने के लिए कि हम पुरुष हैं, और इसमें कोई अति नहीं। ये जो आपने जो समाज का बोला, पैट्रियार्कल समाज, इसके विक्टिम सिर्फ औरतें नहीं है, इसके विक्टिम मेल भी हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है लड़के रोते नहीं हैं, लड़के किचन में नहीं जाते हैं, लड़के खाना नहीं पकाते हैं, लड़के घर का काम नहीं करते हैं, लड़के वगैरह वगैरह। तो विक्टिम सिर्फ औरतें नहीं हैं, विक्टिम इस माइंडसेट के लड़के भी हैं, उतने ही हैं। लड़के रोते नहीं है, क्या लड़की जैसा रो रहा है, क्या गुड़िया से खेल रहा है, क्या किचन सेट से खेल रहा है। तो ये हम परवरिश करते हैं, तो हमारा फैमिली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप समाज में क्या वापस दे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वी एज ए गार्जियन वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग, जैसा मैंने कहा कि जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनानी है हमें। इसमें तो ज्यादा लड़कियां होती है मैम, जैसे जो भी गाली दिया जाता है या जो भी अफसर बोला जाता है, लड़कियों के बारे में बोला जाता है, ये तो खाना बना रही लड़कों के लिए, तो ये तो अब हुआ। लेकिन अभी भी जो गालियां दी जाती है, जो वो लड़की के बारे में बोला जाता है। एक मूवी हम देखे तो मैम, पार्च राधिका आप्टे का, उसमें बहुत बेटर ढंग से समझाई हुई थी वो कि कितना maybe we can keep these things for some these kind of क्या बोलते हैं इसको, we can take up individually, we can take up issues, or maybe we can discuss and talk about it some other day. Right. Actually काफी समय हो गया है, and we should say a big thank you to Nivedita ji for actually इतना देर तक अगला टॉपिक बता के जाइएगा सर, ताकि हम लोग उसका तैयारी करके रख सके। टॉपिक को जैसे रिसोर्स पर्सन्स मिलते हैं, वैसे ही तब रिसोर्स पर्सन्स के डिस्कशन के बाद ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। एक दिन और ये टॉपिक रखा जाए मैम, अभी तक हम पूरे क्लियर नहीं है, अभी हम एक दिन और ये टॉपिक तो हम लोग बाद में भी रख लेंगे, परंतु अभी जो है आप मतलब अन्य लोगों को भी तो मौका दें, अभी छोड़ दें इस टॉपिक पे अपना राय रखना। इसमें अधिकतर इसमें लॉ स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं सर, तो हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग से जितना ज्यादा सीख सके तो।
नहीं, सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स नहीं हम है, लोग के लिए बेहतर न्यूली एनरोल्ड लॉयर्स भी हैं और कुछ पुराने लॉयर्स भी हैं। हाँ, लेकिन हम लोग लॉ स्टूडेंट्स एंड न्यूली एनरोल्ड लॉयर्स को ज़्यादा एनकरेज करते हैं, और हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे अन्य लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दें। कुछ लोग तो काफ़ी बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट होने सुबह लगे। कई बार ऐसा होता है सर कि ये होता है तो हम लोग को पता नहीं चल पाता कि कब क्लास हो रही है या तो फिर कब हम लोग को जुड़ना है। आप कहाँ से हैं नैन पटेल? नैन पटेल, आप कहाँ से हैं? there is one I would like to add कि आप ये YouTube चैनल जो है हमारा, उस पे आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होके उसमें अपडेट हो जाएंगे, तो मे बी डायरेक्टली नहीं सुन भी रहे हैं तो यू कैन लिसन द लेक्चर लेटर ऑन। आप भी सब्सक्राइब करिए एंड इनकरेज योर फ्रेंड्स आल्सो, ताकि जो भी लेक्चर हो रहा है आप लोगों को। चैनल का क्या नाम है मैम? यूट्यूब चैनल में मैम चैनल क्या है वो राजेश सर बता देंगे, हम डिटेल्स वो शेयर कर देंगे। यू कैन सब्सक्राइब टू इट एंड जो भी लेक्चर्स होते हैं फिर यू कैन लिसन टू देम लेटर ऑन आल्सो। जी मैम, ये अच्छा रहेगा चैनल का। लेकिन आप लोग ऐसा कीजिए कि जिन लोगों को सूचना मिलने में दिक्कत होता है, वो लोग एक नंबर नोट कर लें, उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, हम उन लोगों को डायरेक्टली भेज दिया करेंगे लिंक। बोल दीजिए सर नंबर। क्रिएट अ ग्रुप और समथिंग, 250 लोग जुड़ सकते हैं आई थिंक। उसके बाद फिर हाँ, वी कैन। तो अभी आई हैव क्रिएटेड अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। हाँ, तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम उन लोगों का नाम भी जोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो एक नंबर मोबाइल नंबर बताया जाता है 82104 35619। एक बार और रिपीट कीजिए सर। 82104 35619। 35619। तो इनको भी मन है कि उनको डायरेक्टली लिंक भेज दिया जाए, तो वो हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम और कहाँ के स्टूडेंट हैं या कहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो लिख करके भेज दें। जी सर, मैं बोलता हूँ सर इसका नंबर 8210435619। ओके, हाँ ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जो बहुत से साइलेंट लोग हैं वो लोग भी कुछ अपना राय दें, वो भी डिस्कशन में आए, इंटरैक्टिव सेशंस को, हर सेशन को इंटरैक्टिव बनाएं। कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। सर नंबर एक बार नहीं 4 बार बोल दिया गया, अब और नहीं बोला जाएगा। ये देखिए एक मैसेज आया हुआ है, मैसेज कर दिया हूँ सर। हाँ, मैसेज सही है, वो नंबर सही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्लोज करें या कोई जो अभी तक कुछ नहीं बोले वो उनमें से कोई कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, तो let us close for today. Thank you, Nivedita. Thank you, sir. Thank you for coming. And as requested by so many people, I also request you to kindly take another session as soon as possible. Sure, sir. Sure, it will be my pleasure. Definitely, and you decide the topic and let us know. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Thank you, everyone. Good night. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you all. Good night.